ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಶಬ್ದವಿಲ್ಲ, ರೂಪವಿಲ್ಲ, ಕಾಲವಿಲ್ಲ. ನಾವು ನೀವು ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಯಾವುದೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಅಶೂನ್ಯತೆಯ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿ ಶಕ್ತಿ ಶಾಂತವಾಗಿ ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ಆದದ್ದು ಶಿವ. ಅವರು ಚಲನವಿಲ್ಲದ ಶಾಂತತೆಯ ರೂಪ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆಯ ಒಳಗಿನ ಪರಮತತ್ವ. ಆ ಶಾಂತತೆಯ ಆಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಚಲನ ಉಂಟಾಯಿತು. ಆ ಸಂಚಲನವೇ ರೂಪ ತಾಳಿ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು. ಸೃಷ್ಟಿಯ ಪ್ರಾರಂಭ, ಶಬ್ದ, ಚೈತನ್ಯ, ಸ್ಪಂದನ. ಶಕ್ತಿ ಉಂಟಾದ ಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಆಟ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಶಿವನು ಸ್ಥಿರವಾದರೆ ಶಕ್ತಿಯು ಚಲನೆಯಾದಳು. ಶಿವನು ಆಕಾಶವಾದರೆ ಶಕ್ತಿಯು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯುವ ಬೆಳಕು. ಶಿವನು ಬೀಜವಾದರೆ ಶಕ್ತಿಯು ಪುಷ್ಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಸೃಷ್ಟಿ. ಶಿವ ಶಕ್ತಿ ಪರಸ್ಪರ ಒಂದೇ ತತ್ವದ ಎರಡು ಮುಖಗಳು. ಅವರು ಒಂದಾದ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ, ಅದೇ ಓಂಕಾರ. ಆ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ಸ್ಪಂದನಗಳು, ಸ್ಪಂದನಗಳಿಂದ ಕಣಗಳು, ಕಣಗಳಿಂದ ಅಗ್ನಿ, ವಾಯು, ಜಲ, ಭೂಮಿ, ಆಕಾಶ. ಹೀಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ತನ್ನ ರೂಪವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಆರಂಭಿಸಿತು. ಸೃಷ್ಟಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ಲೋಕಗಳು ಮೂಡಿಬಂದವು. ಜೀವದ ಬೀಜ ಚಿಮ್ಮಿತು. ಮನುಷ್ಯರು, ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ನಕ್ಷತ್ರಗಳು, ಬೆಟ್ಟಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಸಂಯೋಗದ ನಿತ್ಯ ನೃತ್ಯದ ಫಲಗಳು. ಶಕ್ತಿ ಲೋಕಗಳು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೆ ಆ ಶಿವನು ಮಹಾ ತಪಸ್ಸಿನ ಅಚಲನ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಲೀನನಾದನು. ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಮತೋಲನ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಆದಿಶಕ್ತಿ ತನ್ನ ದಿವ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮರುಜನ್ಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಳು. ಈ ಬಾರಿ ಅವಳು ಪೃಥ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪತಿ ದಕ್ಷನ ಪುತ್ರಿಯಾಗಿ ಸತಿಯಾಗಿ ಜನಿಸಿದಳು. ನಂತರ ಅವಳ ಹೃದಯವು ಶಿವನತ್ತ ಸೆಳೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಅವಳ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಪರಿಚಿತವಾದ ಶಾಶ್ವತ ಪ್ರೀತಿಯ ನಾದದಿಂದ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ಸುಮೇಧ ಇರು, ನಾನು ಆದಿಶಕ್ತಿ ಪಾರ್ವತಿಯಾಗಿ ಮರುಜನ್ಮ ಮಾಡೋದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಇರು. ಇಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಹಾಳಾಗೋ. ನಡೀರಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳಬೇಕು. ನಾವು ಪಾತ್ರ ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಆದೇಶ, ಕೋರಿಕೆ ಕೂಡ. ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ನಟರಾಜ ಲಹರಿ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಸೃಷ್ಟಿನಾಟ್ಯ. The quiet cosmos is just still, and here comes Shiva, who wants to experience himself, and with this thought awakens the Shakti. Shiva and Shakti come together to create the world, to procreate the world, to experience the world. Come, let's watch what happens in their journey. Raja
यही नियति है, हम फिर मिलेंगे. Amidst the affection and love of Shiva and Shakti, here comes the need to separate. The separation is inevitable. The separation is for the greater good. The separation is to go ahead and create the world. The world is in the need of the son of Shiva and Shakti, who can protect the world from the Rakshasas. Shakti is born as Sati, who is the daughter of Daksha. Brahma is very angry. He calls his son Daksha to tell him not to come in between Mahadev and Sati. अति कर दी दक्ष, अब तुम्हें स्मरण करना ही होगा. महादेव सती से Shakti is born as Sati, who is the daughter of Daksha. Brahma is very angry. He calls his son Daksha to tell him not to come in between Mahadev and Sati. अति कर दी दक्ष, अब तुम्हें स्मरण करना ही होगा. महादेव सती से विवाह करके संसार का उद्धार करें, सृजन की क्रिया को पूरा करें. सती और शिव एक नहीं होने दो. In spite of all the hurdles and conspiracies that Daksh plays, Sati is still drawn to Shiva. आदिश योगेश ओंकारनाथेश संगीत प्राणेश्वरा प्रणवानन्दनादेश्वरा भूत भवद्योग्य प्रत्यक्ष साक्षात्कारानाथ कालेश्वरा परमानन्दनादेश्वरा. मेरी एक इच्छा है महादेव, मैं अपने पिता के घर पिताजी के यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जाना चाहती हूँ. रुक जाओ सती, मत जाओ. मैं जानती हूँ आप मुझसे अत्यंत प्रेम करते हैं, किंतु प्रजापति दक्ष मेरे पिता हैं. मैं वहाँ सुरक्षित रहूंगी महादेव. आप अपने हृदय में कोई आशंका मत पालिए, मुझे कुछ नहीं होगा. The worst is to come when the loving daughter Sati approaches her father Daksh, who is filled with anger, resentment, and hatred. मेरे यज्ञ में आकर मुझे कृतार्थ करने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद. अग्निन्दूतं पुरोदधे अव्यवाहमुपब्रुवे देवां सादयामिह देव
निमंत्रण के भी आ गए। पिताजी, बारंबार मुझे पिता का संबोधन कर मेरा मान मत करो कन्या। प्रजापति, क्यों काल को स्वयं बुलावा दे रहे प्रजापति आप? काल और महाकाल आज दोनों चाकर है मेरे घर में, और आज तो भगवान विष्णु भी मेरे साथ। क्या बिगाड़ लेगा वो मेरा कपाली, पाखंडी, विचरण करने वाला वो मूर्ख, उस जंगली शिव को भगवान तो क्या पशु तले भी नहीं मानता। बहुत हुई मेरे स्वामी की निंदा। इतना कुछ सुनने के पश्चात मुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। इस अभिशाप से मुझे मुक्त होना होगा, नष्ट होना होगा। इस देह को नष्ट होना ही होगा। कदाचित इसके पश्चात मैं मेरे महादेव को पा सकूं, सदा सदा के लिए उनकी हो सकूं। इस देह को इसी क्षण इसी अग्निकुंड में भस्मीभूत करती हूँ। सती रुक जाओ, अपनी माँ की ओर देखो। ये तुम क्या कर रही हो सती? बस सती, बस बहुत हो गया। कुछ यदि तुझमें साहस है तो अपने महादेव को नमन करते हुए मैं अपने योग और स्वयं ऊर्जा से इस देह को भस्मीभूत करती हूँ। महादेव, मेरी इस सृष्टि पर विपत्तियों की आंधी चल रही है, उसको खंडित होने से केवल आप ही बचा सकते हैं महादेव। लौट चलिए महादेव, लौट चलिए। कैसी सृष्टि? मेरी सृष्टि तो सती थी, सती नहीं तो मैं कुछ भी नहीं। शिव शक्ति विहीन शव। मेरा आपसे यही अनुरोध है कि आप मुझे एकांत में छोड़ दीजिए। जाइए, मैं मेरी सती के साथ ऐसे ही रहूंगा। जाइए, जाइए देवी, चलो सती। विरह की पीड़ा व्याकुल मन से क्षण भर सही न जाए रे, क्षण भर सही न जाए रे। विरह की पीड़ा व्याकुल मन से क्षण भर सही न जाए रे, क्षण भर सही न जाए रे। Shiva leaves Vishnu and Brahma clueless, so they decide to pray to Adi Shakti herself. कृपा कीजिए माते, आपको पुनः जन्म लेना ही होगा माता। मैं हिमावत की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म लूंगी। मेरे पति कौन बनेंगे? किससे होगा मेरा विवाह? Who will be my husband? Parvati, playing Shiva's damru, curiously asks, and this question is the sole reason of her birth. Adi Shakti, first born as Sati and now born as Parvati, takes birth each time to reach her Shiva. The journey is not easy. There are several hurdles and a lot of resistance from Shiva himself. Lord Vishnu, his wife Lakshmi and Brahma are trying to help Parvati. They send Narada to guide Parvati so that she attains the qualities that Shiva will accept fully. देवी पार्वती यौवन अवस्था में प्रथम चरण रखने के पश्चात उन्हें ये आभास हो रहा है कि यदि उन्हें महादेव को पाना है तो उन्हें महादेव के योग्य बनना होगा, और इसकी अनुभूति उन्हें भयभीत कर सकती है। देवी पार्वती को मनुष्य रूपी शरीर की सीमाओं को पार करके महादेव के योग्य बनने के लिए उन्हें क्या क्या तप करने होंगे। आप ही ने कहा था ना देवी कि ये उनके लिए कठिन होगा। कहीं देवी पार्वती भयभीत ना हो जाए। देवी पार्वती को
इस भय का सामना करना ही होगा, इन भावनाओं से ऊपर उठना ही होगा। तो इस पुण्य मिलन में कई कठिनाइयां आने वाली हैं। शिव को पाना मतलब सब कुछ पा लेना। Shiva is in Samadhi for ages now after Sati left, as Parvati is walking towards Shiva. She is recalling all her memories as Sati. Shiva wanted Sati to attain her true powers, but Sati rejected it. Parvati feels guilty and devastated. Parvati now decides that she is ready. And as Parvati, she will do everything to reach her full potential. She is now pleading Shiva to open his eyes and look at her once. What will Shiva do? आपने महादेव, हमने आपके उस पवित्र प्रेम पर संशय कर आपका अपमान और आपकी अवहेलना की। इस कलंक का प्रायश्चित तो हमें करना ही था, अग्नि द्वारा दहन होना ही था। यही हमारा दंड था। आपका प्रेम हमारे प्रेम से श्रेष्ठ है। हम आपके सम्मुख हैं, आपकी अर्धांगिनी। वे अपने नेत्र खोले महादेव और हमें बताएं कि हम आपके योग्य कैसे बन सकते हैं। हम संभव असंभव वो हर प्रयास करेंगे। उचित है स्वामी, स्वयं ही अपने आप को आपके योग्य बनाने का उपाय भी ढूंढ लेंगे, किंतु आप एक बार हमें देख तो ले। आप हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं स्वामी? कौन है आप देवी? आपने हमें नहीं पहचाना स्वामी? हम पार्वती हैं, आपकी पार्वती। कब से आपके नेत्र खुलने की प्रतीक्षा कर रहे थे और आपने एक बार भी हमारी ओर नहीं देखा। आप जो कोई भी हैं, मैं आपको नहीं जानता। पहचानिए हमें महादेव, हम वही सती हैं जिसने आपके मना करने के बाद भी आपके अधिकारों के लिए अपने पिता के यज्ञ कुंड में अपने देह की आहुति दे दी। और आज वही सती पार्वती के रूप में आपके सामने खड़ी है। हमें स्वीकार कीजिए महादेव, स्वीकार कीजिए। रुक जाइए देवी। यदि आप पार्वती के रूप में वो सती हैं जिसके कारण मैं समाधि में लीन हूँ, तो मुझे वो सती भी पार्वती के रूप में स्वीकार नहीं है, किसी भी मूल्य पर नहीं। रुक जाइए स्वामी, रुक जाइए। नारायण 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 नारायण। ऐसा क्यों किया आपने? देवर्षि नारद, जब मैंने पहली बार पार्वती को देखा था, मुझे तभी ज्ञात हो गया कि मेरा प्रेम दूसरा जीवन लेके पुनः लौट आया है, किंतु मैंने पार्वती को स्वीकार नहीं किया। क्यों प्रभु? देवर्षि नारद, महादेव के पुत्र को जन्म देने के लिए पार्वती को शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से ऊर्जा शक्तियों के पालन पोषण हेतु तैयार होना होगा। महान माता पिता ही महान संतान को जन्म दे सकते, इसीलिए मैं अंतिम जन्म तक पार्वती की परीक्षा लेता रहा। Lord Vishnu, his wife Lakshmi and Brahma are trying to help Parvati. They send Narada to guide Parvati so that she attains the qualities that Shiva will accept fully. प्रणाम माते। प्रणाम देवर्षि। शिव को पाना इतना सरल नहीं है, बहुत बड़ी परीक्षा देनी पड़ती है। महादेव की अस्वीकृति के कारण
हमारा जीवन निरर्थक हो गया है। हमें क्षमा कीजिए देवर्षि। चिंता न करें माते, मैं आपको शिव तक पहुंचने का मार्ग दिखाने आया हूँ। मानव शरीर में 16 अशुद्धियां होती हैं और इन 16 अशुद्धियों को दूर करने के लिए तो 16 सोमवार तक व्रत रखने होंगे, और वो इसलिए कि सोमवार महादेव का दिन है। मुझे पूरा विश्वास है माते, आपका और महादेव का मिलन अवश्य होगा। शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। Parvati's devotion, her bhakti, her love for her Shiva melts Shiva himself, and the world rejoices. स्वामी, आप योग निद्रा से इतने शीघ्र कैसे जाग गए? आज तो समस्त ब्रह्मांड अपनी निद्रा से जाग रहा है देवी। अर्थात देवी पार्वती की तपस्या सफल हुई। देवी पार्वती ने अपने विलक्षण तप से महादेव को प्राप्त कर ही लिया। वो देखिए पार्वती, हमारे कष्ट के हर पल की अनुभूति मुझे भी होती थी। हमारे प्रेम का दूसरा जन्म आरंभ जो इससे कहीं अधिक सुख, संपूर्णता, संतोष की अनुभूति करवाएगा। मैं तुमसे आज ही विवाह करूंगा। आज रंग है लाई, पार्वती ने शिव को पाया, त्रिभुवन देत बधाई, त्रिभुवन देत बधाई। तुम मेरी अर्धभागिनी हो। कैलाश पर हमारे भक्त और हमारे गण हमारे गृहस्थ जीवन को आरंभ करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलो पार्वती, समय आ गया है। We are superior. No, we are superior. This has been an eternal fight between the Devatas and the Rakshasas. As Shiva and Parvati continue to take care of the world, these Rakshasas and Devatas fight over the Amrita. बलि स्वर्ग पर आक्रमण कर अमृत लूट कर ले जाता है। इंद्र अन्य देवताओं के साथ बलि से अमृत प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, परंतु अमृत कलश क्षीर सागर में गिर जाता है। महादेव कहते हैं कि देवताओं और असुरों को मिलकर समुद्र मंथन करना होगा। देवी शक्तियाँ अमृत के साथ समुद्र में जलमग्न हो गई। यदि उन्हें पुनः प्राप्त करना है तो समुद्र मंथन अनिवार्य है। प्रदान परम स्वरूपाना त्रिनेत्र निरीक्षण प्रेम
The choreography of this dance drama was done by our principal ma'am, Madhvi ma'am's choreography.